Bless us today in the excellent way. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You sit here with a great expectation because today God has anointed His servant and He is going to bring a blessing in our life. And really, there will be changes in our heart, there will be changes in our mind, there will be changes in our life, there will be changes in our situation because we are going to hear from the word of God, from the God servant. And really, this will be a blessing for us. And as I call today preacher, please I like to request you all, give him warm welcome. So I request Reverend Nikhil Rajputta along with him Reverend Samson sir. Please come and take your time. All this time I was sitting there and thinking that is it really rather cold today or because I am preaching so that I feel that. इतने समय वहाँ बैठ कर यही सोच रहा था कि यह वाकई में ठंडी है या फिर मेरा प्रचार है इसलिए ठंडी है. Because some people say that when you got to preach you feel rather nervous and either you feel rather cold or rather warm. कुछ लोगों का कहना है कि जब आपका प्रचार होता है या तो आप घबरा जाते हैं या तो फिर आपको जम के ठंडी लगती है या फिर पसीने भी छूटते हैं. So what do you think? Is it my preaching or it's really cold? ये मेरा प्रचार है कि सच में ठंडी है. Let's hear it first from boys' side. But still, there are people, who are in both parts. And let's listen from sisters. What do you think? It's very cold? Oh, that's what the point. Okay, anyhow, I thank God for this opportunity, for giving me another honor to share the platform alongside Reverend Samson to share word of God. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार कि रेवरेंड सैमसन के बाजू में खड़े होकर के मंच को साझा करते हुए फिर एक बार प्रभु के वचन से प्रचार करने के लिए यह मौका मुझे प्रदान किया. And distinguished teaching staff and non-teaching staff, dear students, I welcome you all in the unique name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और हमारे विद्यार्थी भाई और बहन आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं. And I've been thinking from the time I saw my name there, what would be the preaching for this new year, because it's my first preaching that I would be sharing from this chapel service. जब से मैंने अपने नाम को सूची में देखा तब से मैं यही सोचने लगा कि मैं क्या प्रचार करूं, क्योंकि ये मेरी पहली प्रचार यानी कि 2017 के इस नए वर्ष में ये मेरा पहला प्रचार होगा. Then my heart just start beating up and looking around the scripture, praying, meditating and thinking and pondering on any singular topic that I can bring about which would be fruitful for you as students of God's word. और मेरा मन उसी समय से विचार विमर्श करने लगा, ढूंढने लगा पवित्र शास्त्र में से कोई एक ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा विषय जो मैं आप लोगों के समक्ष में रख सकूं, जो आप विद्यार्थी के रूप में यहाँ पर रहते हुए इससे लाभान्वित हो सके. Because whenever I get to preach from chapel, I don't look at you as a mere believers, but I always look at you as a students and try to simplify and concentrate everything that pertains to your life as a student of God's word or a theology that you are doing here. जब कभी मैं आपके समक्ष में आता हूँ, मैं आप लोगों को केवल एक विश्वासियों के रूप में नहीं, लेकिन विद्यार्थियों के रूप में आप लोगों को देखते हुए किस तरह से सरलता से और धर्म विज्ञान की बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, प्रभु की बातों को आपके समक्ष में रख सकूं, इसका प्रयास करते रहता हूँ. And to meet the similar purpose, I have selected a parable in this morning, and that's from Matthew's Gospel, chapter 25, beginning from verse 14 down till verse 30. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुबह के समय में मैंने मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय उसके 14वीं आयत से लेकर के 30. उसके 14वीं आयत से लेकर के 30 आयत तक मैंने आज आप लोगों के लिए ये बात को मैंने तैयार किया है. And parables are sometimes can be misunderstood as a simple stories or a tell to signify certain context, and the story is a message that a preacher wants to communicate. और ये दृष्टांत को मैंने लिया है और दृष्टांतों को कई बार सरल एक कहानी के रूप में भी गलत समझा जा सकता है या फिर एक प्रचार जो अपने दृष्टिकोण से किसी बात को लेकर के प्रस्तुत कर सकता है. But those could be true with the other preachers who talk about story and parable, but when it comes to Jesus, it's not mere story, but it's a earthly story with heavenly meaning. That's the truest and simplest definition of any parable that you can ever find.
और ये हो सकता है दूसरे लोगों के दृष्टांतों के साथ में ये वास्तविक हो सकता है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह किसी दृष्टांत को कहते हैं तो उसकी सबसे अच्छी बात, जो सरल बात हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर की कहानी को लेकर के स्वर्गीय बातों को समझाने का जो प्रभु यीशु मसीह सबसे सरल तरीके से जो इस्तेमाल करते हैं। And that's a very good definition. The earthly story with heavenly meanings is what a parable means. और ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है, एक पृथ्वी की कहानी जो स्वर्गीय बातों को समझाती है, ये बहुत ही अच्छा सरल परिभाषा है। Let's read out. We may not be reading the entire passage as a whole, but I know you have read it and you know the story very well. But I would request Samson sir to read couple of verses from introductory part that begins verse 14, 15, and 16 in Hindi. And as he reads his version, I would request to look at your Bible and go alongside him. और इस दृष्टांत को तो हम पूरी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ मुख्य आयतों को हम परिचय के रूप में इनमें से पढ़ेंगे। जबकि मैं पढ़ता हूँ, आप अपने अपने बाइबलों में ध्यान से देखेंगे, 14, 15, 16 आयतों को पढ़ेंगे, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रूप में छिपा दिए। May the Lord bless by the reading of this scripture. Thank you for the reading. And you see here, it's very beautifully narrated by Jesus himself. And if you are reading some specific versions, you could see there the whole passage there is inked with red color. और बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अगर आपके पास में कुछ अनुवाद है तो आप देख सकेंगे कि ये जो बातें कही गई है वो लाल अक्षरों में आपके बाइबलों में अंकित होगा। Of course, no doubt, everything there is in the Bible is inspired by the Holy Spirit and has equal importance. But when it comes to Jesus saying something that really has a distinguished purpose and a significance in itself. और हाँ, संपूर्ण पूरा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और हर एक अक्षर उसी के द्वारा से प्रेरित है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की बातें आती है, उसकी कही हुई बातें आती है, तो ये बहुत ही ज्यादा अलग बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। And of course, what other Paul or Peter or other apostles have said, another part of the Bible had discussed, theologians have a lot of diverse perspective about it, but what Jesus had said, very less could contrast and stand against it to define it differently. और उसने अगर दूसरे प्रेरितों ने अगर कुछ लिखा है, कुछ कहा है, तो धर्म वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है, अपना अपना दृष्टिकोण है, सहमति और असहमति का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातें जब आती है, बहुत ही कम आपको विरोध और बहुत ही कम इसके विरुद्ध में आपको बातें सुनने को मिलती है। And it's very good the way it has been put together, and you know, one parable could be used to extract a number of lessons and principles for one's life. और ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर इस दृष्टांत को रख छोड़ा गया है। एक दृष्टांत को यदि आप देखते हैं तो उसमें से अनेक उदाहरणों को, अनेक पाठ और सबक हम एक दृष्टांत से ले सकते And हैं। I have the messages I have heard from the parables so far, it has been a number of messages, and all of those differ from each other because these stories are having immense amount of sense when it is communicated, heavenly stories with the heavenly meanings with the earthly stories. मैंने कई दृष्टांतों को पढ़कर देखा है, कई दृष्टांतों को मैंने समझने का प्रयास किया है और देखते हैं कि इनमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिसमें से हम सबक ले सकते हैं। ये एक ऐसे पृथ्वी की धरती के जो कहानियां या ऐसे दृष्टांत होते हैं जिनमें की स्वर्गीय अर्थों को अच्छी तरह से इनमें समझाया गया है। But limiting myself to time, I have come up only with the 3 principles that I want to share with you that Jesus meant his disciples should understand. और 3 बातें समय के अभाव में जल्दी से आपके समक्ष में रखना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहने के लिए जो उसने सोच रखा था वो बातें। And I have tried to simplify etymologically so it will be easy for you to remember, and those 3 are reliance, responsibility and reward. और मैंने 3 शब्दों को मैं आपके सामने रखूंगा जो कि याद रखने में भी बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही उपयोगी कार्य होगा, जो कि Reliance, responsibility and reward.
और वो है आश्रित होना, जिम्मेदारियां और फल। And what is reliance? Let's look at the first point as simple as it can be. पहला बिंदु लेते हैं, आश्रित होने का क्या मतलब होता है। We see in the parable this master who was having probably many servants but selects 3 to entrust them with certain resources that he had as he travels to different countries. आप देख सकते हैं यहाँ पर दृष्टांत में एक स्वामी है, इसके अनेक नौकर दास हो सकते हैं, लेकिन उसने अपने 3 दासों को चुना और इससे पहले कि परदेश को चला जाए कुछ जिम्मेदारियों को, अपने संसाधनों को सौंपते हुए चला गया। And he selects 3 servants and gives them in unequally the talent that he has. और 3 दासों को चुन करके उनके पास में, उसके पास जो तोड़े हैं वो असामान्य रूप से इन तीनों को बांट करके चला जाता है। To first he entrusted 5 talents, और पहले को उसने 5 तोड़े दिए, and to second he entrusted 2 talents, और दूसरे को उसने 2 तोड़े दिए, and to last he entrusted 1 talent. और अंतिम दास को उसने 1 तोड़ा दिया। Now what are these talent? When we try to analyze it, now theologians again differ from each other. अब ये तोड़े क्या है, अगर आप देखेंगे कि इसको हम किस तरह से अवलोकन करें, अब फिर धर्म वैज्ञानिकों की बात करें तो ये अपने अपने मतों में फिर से अलग है। The traditional explanation of talent would be sometime like 6,000 denaries, which might equal around the 20 years of wages of a labor at that context. और अगर आप प्राचीन सभ्यता के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये जो 1 तोड़ा होता है वो कम से कम 6,000 denaries. ये कम से कम 6,000 दिनारी होता है, जो कि 20 वर्ष की कमाई के बराबर होता है। Means like you earn 1 denarii per day, and so that you have to earn so much so that you have to work. And an average labor, like we have laborers in this day, will have to work around 20 some years to earn so much of 1 talent. और ये तो इसी प्रकार से हो गया है कि एक व्यक्ति को आपको कि प्रतिदिन आप जब कमाते हैं तो आपको 1 तोड़ा मिलता है, जैसे कि आज मजदूरी के लिए जैसे पैसे मिलते हैं, वैसा मजदूर एक दिन में जो भी कमाता है वो रखते जाता है, 20 सालों तक वो जो कमाएगा वो रकम होता है 1 तोड़ा। But then modern research and findings says that these talents were not something to measure in itself, but they were the amount or the unit of measures by which some other things were measured. So if I say 1 talent of gold would of course be more expensive than a talent of bronze or iron. और अगर आधुनिक इसका विवरण देखें, आधुनिक रीति से यदि आप इसको समझने का प्रयास करें तो ये जो 1 तोड़ा है ये एक चीज का नापक होता है, एक बाट होता है, ये मापदंड का एक क्रिया है जिससे कि उसको किसी वस्तु को नापा जा सकता है। ये बाट होता है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि 1 तोड़ा सोना, इसका मतलब होता है कि वो 1 तोड़े पीतल और चांदी से कहीं ज्यादा होता है। So let's not discuss what it is and how it is, but understand one thing, that it was something very expensive in the context of the time that Jesus was talking. चलिए ये क्या है क्या नहीं है और कितना है इस बात को हम छोड़ते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर में ध्यान को केंद्रित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में ये बहुत ही कीमती मूल्यवान था। And now as we try to relate with our life, we can look at it as a master being God and the servants being the disciples that represents you and I. और अगर हम इस प्रकाश में देखें तो हमारे जीवन से यदि हम इसको संबंध करते हुए या जोड़ करके यदि हम देखें तो स्वामी हमारा प्रभु परमेश्वर है और दास जो लिखा गया है, बताया गया है, वो चेले अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आप और मैं। And Bible says every believer or every one of you sitting here has some amount of talent and gifts given by God. और बाइबल बताती है हम में से यहाँ पर हर एक जो बैठा हुआ और उपस्थित है, परमेश्वर ने हर किसी को कुछ न कुछ योग्यता या कुछ न कुछ काबिलियत प्रभु ने दी है। And people have gone to explain it, extend the meaning with the natural resources, with the physical health, with the amount of money that you have, amount of relationship you have, and amount of churches you have and ministries you have, amount of skills and talents you have. You could sing, you could play, you could preach, the diverse extension of the same talent. और अगर आप आधुनिक इसकी व्याख्या में अगर आप देखें तो ये हो सकता है कि ये कुदरती रूप से जो भी चीजें मिली है, हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य होगा जो भौतिक रीति से है, तो हो सकता है कि हमारे पास में जो विभिन्न प्रकार की कलीसियाएं हैं, हमारे पास में जो योग्यता है जिसमें कि आप गाना बजाना प्रचार करने की योग्यता और बहुत सारी चीजें, धन दौलत, पैसे,
कुछ भी हो सकता है। And you cannot deny the fact, you may have not found out so far, but you can deny the fact because this master gives at least one talent as least as possible to his servant. आप इनकार नहीं कर सकते हैं, हालांकि आपने पहचाना नहीं होगा, लेकिन ये स्वामी हर एक को कम से कम छोटा सा छोटा अल्प मात्रा में क्यों ना हो, हर किसी को एक तोड़ा तो जरूर दिया। And now the question might have come to your mind that this story of Jesus about relating God with the disciples might some sort of relates with the kind of idea of partiality. और आप यहाँ पर जो दृष्टांत बताया गया है, और आप ये बात को सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का ये जो कहानी बताना, ये दृष्टांत को बताना, और उसमें जो चीजें की गई है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि ये किसी के साथ में भेदभाव, ये पक्षपात किया गया है। Because if you are humble enough, every one of you might be thinking, oh, I am that third servant who has only one talent. और अगर आप इतने नम्र और दीन बन जाते हैं और वो अपने आप को सोचने लगते हैं कि हो सकता है वो जो तीसरा वाला जो है दास, जिसको एक मिला, वो मैं ही हूँ। I am the one who has least abilities and qualities, and I think myself as low as possible, so I could be that third servant who was given only one talent. हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा नाकाबिल हूँ, इतना ज्यादा मेरे अंदर में अयोग्यता है, इतना ज्यादा मेरे अंदर में अभाव है कि हो सकता है वो तीसरा दास मैं हूँ जिसे सबसे कम दिया गया है। But then Bible tells, and you may have heard a number of preachers who comes and tells you that all men are equal and God has created you equally, you are no greater than the other, you all are same. अगर आप बाइबल को देखेंगे तो बाइबल इस बात को बताती है कि हम सब को एक तरह से प्रभु ने सृजा है, हम सब एक है और हम सब एक रीति से कहीं ना कहीं से समानता में बनाए गए हैं। And you hear famous quotes and inspirational preachers, and one of those famous, Abraham Lincoln, the president of America, famously said a quote which is of course very popular, all men are equal. और आप कितने सारे प्रेरणादायक वाक्यों को सुनते हैं, प्रेरणादायक कथनों को लोगों से आप सुनते हैं। उन्हीं में से एक अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका एक बहुत ही बहुचर्चित और प्रचलित वाक्य को भी आपने सुन रखा है, जिसमें कि उन्होंने कहा है सब मनुष्य समान हैं। But in the light of this parable, I want to tell you, all those things you may have heard may be popular, but not biblical in the light of the parable that Jesus shared. और हो सकता है कि आपने मैं इस धर्मशास्त्र के प्रकाश में आपसे ये कहना चाहता कि आपने ये सब कुछ जो सुना है, ये प्रेरणादायक स्रोत, जो प्रेरणादायक वाक्यों को जो सुना, ये सब बाइबल के बाहर है, बाइबल नहीं है। लेकिन अब जब बाइबल की बात करते हैं, यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं करते। Because in one perspective you may say you are equal before God when it comes to plan of salvation, giving of grace, giving of mercy, giving of natural resources, that might be rain. Bible says God sends his rain to righteous, unrighteous equally. But when it comes to talent, it's not me who is saying, it's Jesus who is telling, you are not equally given. लेकिन जब आप इस दृष्टांत की बात करते हैं और जब परमेश्वर की वो बात सुनते हैं कि सब मनुष्य समान है, प्रियो, सब मनुष्य समान परमेश्वर के सम्मुख में उद्धार में है, सब मनुष्य समान परमेश्वर जो यहाँ पर हमें कुदरती संसाधन दिए हैं, उनमें हम सब समान है। जैसे कि मान लीजिए बरखा है, जैसे एक वर्षा है, धर्मी अधर्मियों को सबके ऊपर में परमेश्वर ने ये वर्षा दी है। लेकिन जब योग्यता या तोड़ों की बात आती है तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं करते, वो कुछ अलग बोलते हैं। And I want to defend it apologetically, saying that it's nothing partial in there, nothing unequal is there, but it's something that you see the beauty in the diversity in the creation of God. और मैं इस बात को लेकर के धर्म पक्षी मंडल शास्त्र के दृष्टिकोण से ये बात को बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी सुंदरता ये अनेकता में एकता है। Bible tells us God is a master creator, and he always creates masterpieces. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर बड़ा अच्छा सृजने वाला और उसकी हस्तकला में बहुत ही हुनरमंद है, और इसीलिए परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया है बड़े हुनर से, हस्तकला से बनाया। And all those are to meet specific purposes that God has planned before the foundation of this world. और इस संसार के जगत की नींव डालने से पहले परमेश्वर ने जो कुछ भी सोच रखा है, उन सब उद्देश्यों को, योजनाओं को साकार करने के लिए परमेश्वर
परमेश्वर करता You है। know the Pablo Picasso, who is a renowned painter, and one of his paintings recently I was reading was $104 million. और आप पिकासो के पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं, और आप जानते हैं कि वो कितने ज्यादा वो सुप्रसिद्ध वो कलाकार रहे हैं और चित्रकार रहे हैं। और अभी हाल ही में मैंने उनके बारे में पढ़ा कि उनका एक जो चित्र है $104 मिलियन में, When you convert it to Indian money, it will come around 7 Arab. अगर आप उस डॉलर को अगर आप भारतीय अगर आप पैसों में उसे परिवर्तित करते हैं तो कम से कम 7 अरब रुपए And है। as I was looking at that painting, it has nothing. A couple of leaves, green and white color, nothing more. और जब मैं उसी 7 अरब के चित्रकारी को देख रहा था तो उस चित्रकारी में था क्या, कुछ सफेद और हरे पत्ते, बस और कुछ नहीं। But what makes it special? लेकिन उसको कौन सी चीज ने खास बनाया? It is its uniqueness and distinguished quality and a kind of, I should better call it, the symmetrical structure that makes it most expensive. ये अनोखापन जो आप देख रहे हैं और इसकी जो खासियत आप देख रहे हैं, बजाय में इसके तो मैं और भी ये बात को कहना चाहूंगा कि उसे जिस तरह से सुसज्जित किया गया है, जिस तरह से उसे रख छोड़ा गया है, उसको वो बड़ा अनोखा और बहुत ही खास बनाता And है। this morning, my dear friends, you have to understand that God has created you uniquely. You are always different than the one who is next to you or maybe in the next part of this world. और इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आपको बड़े अनोखे तरीके से बनाया है, इतना अनोखा कि आपके बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल आपसे मेल नहीं खाता, या संसार के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति आपके जैसा नहीं होता। Your thumb finger, your tongue finger, your eye finger test and everything that you have is never matched with any other human being on the face of this earth. और आप अपने अंगूठे को देख लीजिए, अपने जीभ को, और आपकी आंखों की जो पुतली है, उस कोई भी चीज इस दुनिया के दूसरे किसी भी व्यक्ति से आपका मेल नहीं खाता। And Paul takes the whole chapter that we have been studying these days from Ephesians to talk about the unity in the body of Christ despite the diversity that is seen among its members. और हम जो पौलुस के जो बातों को पूरा संपूर्ण अध्याय जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, और इफिसियों की पत्री के ऊपर में हमारा जो अध्ययन चल रहा है, उसमें पौलुस इस बात को बताता है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के देह में हैं, लेकिन हम विभिन्न अंग हैं, और हम सब अलग होने के बावजूद भी वो कहता है कि हम प्रभु में एक है। And I guess it's Joseph who took the pain to explain all those things in one of his preachings. And I think that's very important this morning to you all to not only understand but accept that you are inferior or superior to the fellow human being in terms of talent that God has given you. और मुझे लगता है कि जोसेफ ने ये बहुत ही अपने प्रयासों के साथ में इस बात को प्रचार करने का या समझाने का उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उस दिन उठाया था, जिसमें कि हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने आप अपने आप को तुच्छ समझे या अपने आप को उच्च समझे, किसी भी बात में हम एक दूसरे के योग्यताओं में और एक दूसरे के जो तोड़े हमको सौंपे गए उसमें हम बिल्कुल अलग है। And those differences are because of the specific purposes for which God has not created only to you but has called you to be in the ministry. और ये सब विभिन्नताएं वो उद्देश्य और योजना जो परमेश्वर ने बनाई है, आपको न केवल बनाया लेकिन आपको जिसके तहत में बुलाया कि वो उसको पूरा कर सके। See, sometimes Paul can think about himself and say, oh, I am inferior to Jesus in terms of ministry that he has done. और कई बार हो सकता है पौलुस अपने आप को ये बात को कह सकता है कि मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो कम हूं। वो इसलिए कह सकता है अपने आप का जब तुलना प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से करे तो वाकई में पौलुस की जो सेवकाई और यीशु मसीह की सेवकाई में पौलुस यकीनन तुच्छ है। John, you can think and say, oh, I was least even than Paul because he wrote 13 plus and I could only contribute to 4 of the letters or including gospel in the Bible, so I'm inferior to Paul. और हो सकता है कि यूहन्ना पौलुस को देख करके ये कह सके कि मैं तो पौलुस से थोड़ा नीचे हूं, तुच्छ हूं, क्योंकि पौलुस ने तो कम से कम 14 पत्रियां लिखी है, मैंने तो 4 ही लिखी है। Then there comes Peter who would say, oh, I wrote only 2. How inferior and a kind of wretched I am who could not be used so much as much Paul in terms of geography, in terms of theology. और हो सकता है कि अब पतरस अपने आप को देख करके अरे मैंने तो केवल 2 ही पत्र लिखी है, अपने आप को अभागा, अपने आप को तुच्छ समझ सकता है। इस बात को भौगोलिक परिस्थिति को लेकर के भी और आप देखेंगे तो आप साहित्य के रूप में भी देखेंगे वो अपने आप को तुच्छ मान सकता है। It's very funny.
ये बहुत ही मजाकिय है। What would Jude would say in this context? अब यहूदा इन सब परिवेश में क्या बोलेगा? Where does he stand? अब ये कहाँ खड़ा रहता है? But then when you put that in the format and the frame on the parable that Jesus talked about, you would understand the specific need and purpose with which they were not only created but called to serve the Lord. लेकिन आप इस प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए दृष्टांत के उस ढांचे में और उस आकाश स्वरूप में अगर आप इन बातों को ला करके रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस उद्देश्य, किस बुलाए जाने के द्वारा से परमेश्वर ने सबको ऐसा रख छोड़ा है। But one fact, universal fact is there with a believer, that God has put his reliance on you. लेकिन एक भूमंडलीय तथ्य और सच्चाई ये है, हर एक विश्वासी के संबंध में ये है कि परमेश्वर ने, प्रभु ने आप सबों के अंदर में, आपके सबों के ऊपर में उसने अपना आश्रय रख छोड़ा है। This master has relied on his servant and entrusted, though be it only one talent, but he has entrusted something to you. और इस स्वामी ने, ये प्रभु ने अपने दासों के ऊपर में, आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में, भले ही एक क्यों ना हो, लेकिन एक चीज हमारे भरोसे, हमारे ऊपर आश्रित करके छोड़ दिया So in है। this morning, let's understand that we are the one on whom God has relied and given some sort of talent to utilize it for his glory and his glory alone. हमें आज सुबह के समय में ये समझना होगा कि परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए, अपने नाम के निमित्त में सबों के लिए आश्रित होकर के, सबके ऊपर में भरोसा करके एक ना एक तोड़ा योग्यता हमको दिया। And that reliance for what and how much is your work to find out. और वो आश्रय कितना है, कितने मापदंड और पैमाने में है, ये पता करना आपका काम है। You could be Barnabas, you could be Paul in terms of ministry abilities, or you could be Edward, or you could be Billy Graham, or you could be a Mayor Kurian Thomas who worked in one part in terms of geographical range of your ministry approach. हो सकता है आप बरनबास हो, आप पौलुस हो सकता है आप एडवर्ड हो, आप हो सकता है आप कुरियन थॉमस हो। किस रीति से किया, आप भूगोलीय आप दृष्टिकोण से देखे या किसी भी तरह से देखे, आपको पता करना है आप क्या है। But one is the fact that you are entrusted with God's reliance over you, and he believes in you that you would use it for his glory. लेकिन एक बात तो पक्का है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर में आश्रित होकर के आपको कुछ ना कुछ सौंप रखा है और प्रभु आपसे ये कुछ योग्यता जो दी है उसके ऊपर में चाहता है कि आप कुछ करें। Now from reliance, God's reliance, we move to the man's responsibility. और अब हम परमेश्वर के इस आश्रय को, आश्रित होने को छोड़ करके अब हम मनुष्यों के जिम्मेदारी, कर्तव्य पे आते हैं। Now you see, with every reliance comes responsibility. अब देखिए, हर एक आश्रय के साथ में एक जिम्मेदारी आती है। With every relationship comes requirement. और हर एक संबंध से एक उपयुक्त चीज जो करना है, जो आवश्यकता है वो आती है। With authority comes accountability. और अधिकार के साथ में लेखापन आता है। With every opportunity comes obligation. और हर एक अवसर के साथ में हर एक अवसर के साथ एक कर्तव्य आता है। Therefore, every reliance comes along with responsibility. और इस अर्थात और इसी तरह से, इस रीति से अर्थात कि हर एक आश्रय के साथ में एक जिम्मेदारी आती Now है। I want to talk about three things which are very much relevant to you that may answer why the third servant could not use what had been given by his master. मैं आपको वो तीन बातें बताने का प्रयास करूंगा जो आज बिल्कुल अनुकूल है, और वो तीसरा जो दास जो परमेश्वर के प्रति या स्वामी के प्रति क्यों वफादार ना रह सका, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। The first point, the self-doubt. और पहला बिंदु है वो है शंका। A good number of people cannot become responsible or understand responsibility because they doubt about themselves. और कुछ अच्छी संख्या में जो लोग हैं वो कुछ जिम्मेदारियों को पूरी नहीं कर सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको अपने आप के ऊपर ही शंका है। They raise questions like, am I qualified to do that? और वो ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं, अरे इसको करने के लिए मैं योग्य हूं कि नहीं। I don't want to go in the Bible because we have no time to look at the examples, but you know what am I talking about. और मैं बाइबल में जाकर के एक एक उदाहरण छाटने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन वो कौन है? अरे am I called really to do this ministry? अरे क्या मैं सच में इस सेवा को सेवा
सेवा को करने के लिए बुलाया गया? Am I really capable enough to accomplish so much that God has told me? और परमेश्वर ने इतना सब कुछ जो बोला, इतना सब कुछ जो करने के लिए कहा है, क्या ये सबको उपलब्धि प्राप्त करने के मैं योग्य हूँ? Are these preachers speaking the preaching belongs to me or is it for me? और ये जो प्रचारक प्रचार कर रहा है, ये क्या मेरे लिए है? A good number of people go through such feeling of insignificance and unworthiness. और बहुत संख्या में लोग हैं जो अपने आप को इस तरह से तुच्छ जानते हुए, अयोग्य, अपने आप को अयोग्य समझते हुए इन विचारों में अपने जीवन को बिताते हैं। Second reason, self pity. और दूसरा है स्वदया। और ये self pity is something that you think what happened in the past. और ये अपने आप में जो दया खाने वाली बात है, ये आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप इस बात को देखते रहते हैं कि अतीत में आपके साथ क्या हुआ। Oh, last year I tried, I failed, so I better not be trying the same thing. पिछले साल भी तो किया था ना मैंने, लेकिन मैं कामयाब नहीं, अच्छा मैं नहीं करूं यही अच्छा Hey, है। I preached last time, I could not do. Next time when they give me, I gonna get sick. और पिछले बार प्रचार दिया था, मैंने क्या बोला था, क्या किया था मालूम नहीं। एक काम करता हूं, अगली बार प्रचार देंगे तो बोल दूंगा मैं बीमार हूं। Last time I went to share the gospel, oh, I was sharing, I stammered my tongue, I could not answer him. Oh, I failed, I should not encounter second person with the gospel. और अरे पिछली बार सुसमाचार बांटने के लिए गया था, वो व्यक्ति के सामने जबान लड़खड़ा गया, क्या बोल रहा था मालूम नहीं। एक काम करता हूं, अगली बार किसी को सुसमाचार सुनाऊंगा ही नहीं। It's good to remember past to learn the lesson, but when it becomes hurdle for you, it's fatal for your life. और ये अच्छा है कि आप अतीत को स्मरण रखें ताकि आप सबक ले सके, लेकिन जब ये आपको ठोकर खिलाए तो ये आपके लिए घातक और हानिकारक है। Third and final, self-consciousness. और तीसरा और अंतिम जो है वो स्व विवेकपन। Now, what is self-consciousness? अब ये स्व या फिर ये विवेकपन क्या होता है? You think too much about the people, what they think of you. और आप दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर के आप ज्यादा सोचते You हैं। know the story of a son and a father and a donkey walking through the way. आप वो कहानी को याद करते हैं जहां पर एक बाप एक बेटा अपने गधे को लेकर के चलते रहते How हैं। many of you remember that story? कितने लोगों को वो कहानी मालूम है? Since many of you raised their hand, I won't tell the story what happens there. But what I'll tell you, what I saw yesterday as I was scrolling down the Facebook, I saw a beautiful video that a father was capturing her 3 years old daughter. Remember the age? 3 years old daughter trying to climb a small horse but failed miserably 16 times. And father is videoing. और सबसे खूबसूरत बात ये कहानी, क्योंकि आपको मालूम है, इसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं फेसबुक में जो वीडियो देखा हूं उस बात की चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा कि एक पिता है और एक 3 साल की बेटी, उम्र को याद रखिएगा, वो 3 साल की बच्ची है, एक छोटे से घोड़े के ऊपर में चढ़ने का प्रयास कर रही है और पिता उस चढ़ने के उस बच्ची के प्रयासों को वीडियो में वो कैद कर रहे हैं। 16 बार वो बच्ची नाकामयाब हुई। She fell once, twice, thrice, and then 15 times father didn't go to help. He is videoing. And when she tried 17th time, she climbed over the horse and rid it over only 3 years old. और देखिएगा कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो बच्ची गिरते जा रही है, लेकिन पिता मदद करके बेटी को ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं गया, वो तो बेटी के गिरने का वीडियो बना रहा है। 16 बार हो गया, 17वीं बार वो बच्ची घोड़े के ऊपर चढ़ गई। So these are the reasons, my friends, because of which many of us fail to understand the responsibility, forget about fulfilling it. और यही वो कारण है कुछ इसमें से मेरे प्रियो कि हम अपने उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम भूल जाते हैं। We doubt about ourselves, we doubt about our past, we doubt about people, we think about everything else. In that we forget the talent that God has given us. और हम कि अपने ऊपर में ही दया खाने लगते हैं, अपने ऊपर में ही शंका करने लगते हैं, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं यही सोचते रह जाते हैं, और परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी तोड़ा हमको दिया है उसको तो हम भूल ही जाते हैं। A lot of people mock you as you live in this college. Your seniors will mock you, your juniors will mock you. They will laugh at you that you cannot speak English, you cannot study. And of course, Reverend Nag was giving warning from the pulpit that a lot of students have been witnessing the same experience that other people are mocking. And you are in the similar place like that son and father who was walking with a donkey on the road where people mocked no matter what they were doing.
और कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज के अंदर में आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, आपके जो वरिष्ठ छात्र हैं, आपके जो साथ वाले हैं, आपका ठट्ठा करते हैं, आपकी मस्करी करते हैं, आपकी मजाक उड़ाते रहते हैं, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आपको उच्चारण नहीं आता है, आपको बोलना नहीं आता है। कई बार रेवरेंड आज यहाँ पर आकर के ऐसे ही बातों के बारे में कितनी चेतावनियां दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे बुरे अनुभव से होकर गुजरे होंगे, लोग आपका मजाक उड़ाए होंगे। याद रखिएगा, वो बाप और बेटा, वो गधे का कहानी कि वो कैसे जा रहे थे, उनके साथ में क्या हुआ, ये मत भूलिए। Let's not fail to recognize and fulfill the responsibility that has come along with the reliance that God has put on आओ us. आश्रित होने के साथ साथ में हमारे जीवन में जो जिम्मेदारी आई है, हम उसे भूलने वाले ना हो सके। Third and final, reward. और तीसरा और अंतिम प्रतिफल या फल। And you see in this text, the reward is given has a threefold meaning. और यहाँ पर इस दृष्टांत के अंदर में जो प्रतिफल दिया गया है, उस प्रतिफल के 3 अर्थ हैं। Paul talks about reward in Corinthians chapter 9 that everyone runs to fulfill the responsibility because there is a price set up there that they want to achieve. कुरिन्थियों की पत्री के 9वें अध्याय में पौलुस इस बात को कहता है कि हम में से हर किसी को ये जिम्मेदारी दी गई है, हम में से हर किसी को, क्योंकि एक इनाम हमारे लिए रखा गया है, हम सब उसकी ओर बढ़ते चले जाते हैं। Sadly, he says one thing, there is only one who receives the prize. That's a sad part of the story. और ये बड़े दुखदायक बात यह है कि इसमें इस दृष्टांत में या कहानी में पौलुस तो ये बात को कह रहा है, उनमें से एक इनाम पाएगा। But in the parable of Jesus, it's not for one, it's for everyone. लेकिन यीशु मसीह के इस दृष्टांत में अगर हम देखेंगे तो ये प्रतिफल एक के लिए नहीं, तीनों के लिए है। Three of these were rewarded. और तीनों को प्रतिफल मिला। Now first two differently and the least little differently. और पहले 2 जन को एक जैसा, लेकिन तीसरे को तो बिल्कुल अलग तरीके से Now मिला। first two were rewarded differently. That has 3 meaning. I would tell you, it includes affirmation. First, affirmation. और ये 2 जो जिनको इनाम दिया गया है, उसके अर्थ को मैं आपको बताऊंगा, तीसरे वाले का भी बताऊंगा। First- अगर आप पहले वाले को देखेंगे तो वो है स्वीकृति। He said, Master says, well done, my good servant. स्वीकृति में, अफर्मेशन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे दास तूने अच्छा किया। Affirmation, then promotion. Well Oh. done, you've been faithful in little, I would give you more that you can again do the same profit to the master. That's a promotion. और इस स्वीकार में आपको पदोन्नति मिलती है। प्रभु यीशु, तूने बहुत ही अच्छा किया है, चल ले, तू ये ले और तू अपने स्वामी के लिए लाभ ला सकता है। Third and final, celebration. और तीसरा और अंतिम वो है उत्सव। Master says, enter into your master's happiness. और वो स्वामी ने उससे कहा है, तू भी अपने स्वामी के विश्राम में और उत्सव में प्रवेश कर। So if you behave like first two servants, you're gonna receive these 3 reward in your life. अगर आप इन अपने स्वामी के लिए अगर आप पहले 2 के समान करते हैं तो आपको ये 3 बातें इनाम में मिलते हैं। You will be affirmed, you will be promoted, and you will be celebrated the thing you have received for the Lord. और आप स्वीकार किए जाएंगे और आप इसके तो आप स्वीकार किए जाएंगे, आपको जिम्मेदारी और दी जाएगी, यानी कि पदोन्नति आपकी होती रहेगी और आप स्वामी के द्वारा से उत्सव में, खुशी में मनाने के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। Now last thought, the reward of the third servant. अंतिम विचार, तीसरे का प्रतिफल। A good number of ministers and believers, they think that it's only sin of committing which is very severe and that can cost you hell in your future. और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आप जो अपने जीवन में कुछ कार्यों को जो गंभीर है जो करते हैं जीवन में, इसके बाद में आपको इससे जो प्रभाव पड़ने वाला है वो जो करते हैं वो पाप है। But here Jesus is communicating an idea of sin of omission. लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो है चूक जाने का पाप। Sin of commission and sin of omission. और करने का पाप और चूक जाने का पाप। The Old Testament 10 commandments were all about sin of commission. और अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो सारे आप व्यवस्था की बातों को देखेंगे तो वहां पर करने के पाप को बताया गया But है। what Jesus is talking here is not sin of commission, it's sin of omission. लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रियावंत पाप के बारे में नहीं, लेकिन किसी चीज को चूक जाने के पाप को बताया। And that is equally qualifies you for the eternal damnation. और वो साथ ही साथ आपको अनंत काल के विनाश के लिए आपको ठहरा देता है, योग्य बना देता And है। James very well affirms the
the idea in chapter 4 when he says, the one who knows the good and does not do, it counts sin for him. और याकूब ने इस विचार को बड़े खूबसूरती से अच्छे से प्रस्तुत किया है। कहता है जिसको भलाई करना आता है, अगर वो भलाई नहीं करता उसके लिए वो पाप है। So you may be imagining, oh, I am a Christian, I go to church, I pray and I do my job and that's enough for me. But if you are not taking care for the realization of your gift and utilizes it for the master, you may be well qualified for that eternal darkness that this servant had to go through. और हो सकता है कि आप अपने आप को ये सोचते होंगे, अरे मैं तो कलीसिया में जाता हूँ, सब बातों को अच्छी रीति से करता हूँ, लेकिन आप ये तीसरे दास के समान अगर आप जिम्मेदारियों को उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं, परमेश्वर अपने स्वामी के द्वारा से निर्धारित अनंत काल के विनाश में आप धकेल दिए जाएंगे। But this morning it's my prayer and my heart desire that each one of us would behave like first to servant, who would be using, though be it one, even half, or even least of the least, use it for God's glory, multiply it and enter into the Father's joy. और आज सुबह के समय में मेरी ये कामना है, मेरी ये इच्छा है कि हम वो पहले दो दासों के समान बने। हालांकि हमको एक उसका आधा भी क्यों ना मिला हो, आओ हम अपने पिता परमेश्वर, हमारा जो स्वामी है, उसने जो हमारे लिए उद्देश्य रख छोड़ा है, उसके लिए हम कुछ कामों को करें और अनंत काल के विनाश में प्रवेश करने से हम बच जाए। May the Lord add blessing by the hearing and the speaking of His word. Thank you. और प्रभु के इन वचनों के द्वारा से आपको बहुत आशीष मिले। We are so blessed this morning and listening God's word. Talents with us. And Reverend Nikhil told us very specifically, even if you think that you don't have anything, there is something God has entrusted in you since He called you for His great work. So understand and realize the fact of there can be doubts, fears, those that arises from within us that makes us insignificant. But make sure that God has called us and entrusted a certain amount of talents with us and try to trade it for the glory of God. The reliance, the responsibility, and the reward. And let us expect as we do trade for the expansion of the kingdom, that we are going to have affirmation, the promotion and the celebration. No, don't forget this. If we try to omit what is, then that becomes equally qualifies us for the eternal damnation. So may God bless His servant, Reverend Nicholas Gupta, and also Reverend Samson. I have few prayer requests that way.